In fact, opposition parties have started gathering for the grand finale of Bharat Jodo Yatra. Rahul Gandhi can be seen at the event along with other senior opposition party members. This is Sher-e-Kashmir Stadium where the event is taking place. This is the culmination of the Grand Bharat Jodo Yatra that has culminated after almost 4 months, which has travelled across 12 states and 2 union territories. In fact, opposition parties have started gathering for the grand finale in Srinagar. Rahul Gandhi also seen at the event along with other senior opposition party members. In fact, Bharat Jodo Yatra is all set to formally conclude with this function at the Congress headquarters in Srinagar. A rally will also be followed at the Sher-e-Kashmir Stadium, which is where we are getting the visuals from, where Congress and several other like-minded parties will be joining. We have Ranjita. All right, before we go across to Ranjita, in fact, the Congress has also invited several key non-NDA parties to join the culmination of the Yatra. In fact, according to some of the Congress strategists, all like-minded parties are expected. There are certain parties that have skipped the event as well. But at this point, yesterday is when Rahul Gandhi was accompanied by his sister and Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra and other leaders of the party from Jammu and Kashmir for the flag hoisting. We have Ranjita live with us. Ranjita, this is the grand finale of the Bharat Jodo Yatra that is taking place in Srinagar. What's on agenda? We believe that several opposition parties will be joining Rahul Gandhi in this culmination celebrations. Take us through what's on agenda, what will happen today, what about the rally that is set to take place? बिल्कुल देखिए 5.5 महीने की भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर खत्म हुई। कल जो पैदल मार्च था, यात्रा थी, वो खत्म हुआ, लेकिन आज उसका समापन समारोह शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में किया जाएगा, जहां अभी हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरों पे देख रही होंगी कि किस तरह से यहां तैयारी की गई है। हालांकि कश्मीर में आज सुबह से ही बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से यहां लोगों का जो आना है, कार्यकर्ता या फिर जो यहाँ के आम जनता है, उनके आने का सिलसिला जो है वो जरा देरी से चल रहा है। कार्यक्रम में भी थोड़ी 10 से 11 पार्टियां जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल होगी, लेकिन कई कांग्रेस के और यूपीए के जो घटक दल हैं, चाहे डीएमके की बात करें, बिहार में आरजेडी और जेडीयू, ये तमाम पार्टियां इस कार्यक्रम से अपनी दूरी बनाए हुए हैं। एनसीपी भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। हालांकि जम्मू कश्मीर में 2 बड़ी रीजनल पार्टियां एनसी और पीडीपी के नेता जो है वो इस समारोह में शामिल होंगे। तो एक तरफ जो आपसी गठजोड़ और एक विपक्षी गठबंधन की बात जो कही जा रही थी, उनमें कई नेता और कई पार्टियों की अनुपस्थिति रहेगी, लेकिन मंच पर राहुल गांधी के साथ और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कई पार्टियों के प्रतिनिधि यहां नजर आएंगे। सीधे तौर पर कांग्रेस इसे राजनीतिक इस यात्रा को नहीं कह रही है, लेकिन कल जब राहुल गांधी ने इस यात्रा के समापन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक तौर पर इस यात्रा का बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन वो असर क्या होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। Right, Ranjita, also, we saw a lot of criticism on the Yatra as well, especially by several top leaders at the center. They say that this Yatra was done to sort of spread hate, spread misinformation against the center and so on. Even as Congress continued to say that this is not political, the aim of the Yatra was to unite India. It is against the hate and violence being spread across the country. It also saw a lot of criticism. Can you take us through the details of the kind of the brickbats that perhaps the Yatra received over the last 4 months?
बिल्कुल, देखिए पूरे यात्रा के दौरान कई तरह के कह सकते हैं क्रिटिसिज्म, कई तरह के विरोध का सामना न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बल्कि राहुल गांधी पर भी कई निजी हमले हुए। राहुल गांधी टी शर्ट कितने रुपए की पहन रहे हैं, उनका जो जूता है वो मेड इन इंडिया है या बाहर का है, राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती है, राहुल गांधी जिस कंटेनर में रह रहे हैं वो 5 स्टार कंटेनर है। राहुल गांधी के बयानों को लेकर चर्चाएं हुई, चाहे वो चीन को लेकर राहुल गांधी का बयान देना हो। दिल्ली जब यात्रा पहुंची तो स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना कि यात्रा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रही है। जम्मू जब यात्रा पहुंची तो 2 जो सीरियल बम ब्लास्ट हुए उसके बाद यात्रा के रोकने की बात कही जा रही थी। इन तमाम चीजों के बीच कांग्रेस लगातार इस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम कर रही थी और बीजेपी पर हमलावर थी। कांग्रेस का ये कहना था कि इस यात्रा की लोकप्रियता को देखकर सरकार बौखलाई हुई है। यही वजह है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये यात्रा जिन जिन राज्यों से गुजरी, चाहे हम कन्याकुमारी की बात करें, कर्नाटक की बात, वहां भी बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी, हरियाणा में बीजेपी, तो इन राज्यों में कई बार राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के भी दिल्ली में बात उठाई गई थी कि राहुल गांधी की सुरक्षा में लापरवाही बरती गई थी। कुछ इसी तरह की स्थिति हमने कश्मीर में भी देखी कि राहुल गांधी की यात्रा एक दिन रोकनी पड़ी क्योंकि उस तरह की व्यवस्था नहीं थी और खासकर उस समय राहुल गांधी की यात्रा पुलवामा इलाके से गुजर रही थी जहां सुरक्षा की भारी जरूरत थी। लेकिन इन विवादों के बीच कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही थी कि ये यात्रा पूरी की जाए और कश्मीर में जो पहले से तय था कि कश्मीर में आकर कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को समाप्त करेगी, राजनीतिक ना बताकर भी कहीं ना कहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। उनको ऐसा लग रहा है कि चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा जो किया गया है राहुल गांधी के द्वारा, उससे कांग्रेस को पॉलिटिकली फायदा होगा। लेकिन ये बात जरूर मानना होगा कि इस यात्रा से राजनीतिक जो फायदा होगा, राज्यों में चुनाव में पार्टी जीतेगी या हारेगी, लेकिन कार्यकर्ताओं में एक उत्साह जरूर देखने को मिल रहा है। Certainly, Ranjita, you know, as you've been saying, Centre has been insecure as far as the popularity of this yatra is concerned. Is something that Congress had been time and again saying. Also, we saw many, key personalities, people from all walks of life, very important, very prominent people from all walks of life also participating in the yatra over the last 4 months. Some of them were also controversial figures, you know, as far as the centre is concerned. Take us through the people who had participated, some key personalities, some key figures who were part of Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra over the last 4 months, which had also received, criticism and, certain controversial statements were also made against some of the personalities who had been part of this yatra. बिल्कुल, देखिए जब ये यात्रा शुरू हुई अलग अलग राज्यों में अलग अलग चेहरे हमने राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल होते हुए देखे। वो चेहरे राजनीतिक भी थे, वो चेहरे गैर राजनीतिक भी थे। कई नेता अभिनेता इस यात्रा में शामिल हुए। आरबीआई के पूर्व गवर्नर को हमने राहुल गांधी के साथ देखा, कमल हसन को हमने राहुल गांधी के साथ देखा। कांग्रेस के सभी बड़े नेता जिन राज्यों में ये यात्रा जा रही थी, जैसे उत्तर प्रदेश में यात्रा 3 दिन रही, वहां इस यात्रा की अगुवाई कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी के द्वारा किया गया। पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और तमाम पंजाब की यूनिट दिख रही थी। कई अभिनेत्रियों ने भी हमने देखा कि पूजा भट्ट जो है वो भी इस यात्रा में शामिल हुई। इसके अलावा कई समाज सेवियों को हमने देखा। योगेंद्र यादव अपनी पूरी टीम के साथ शुरुआत से ही यात्रा में मौजूद थे। कांग्रेस के भी कई ऐसे चेहरे जैसे कन्हैया कुमार, दिग्विजय सिंह का एक बयान काफी जो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उससे बाद में दूरी भी बना दी। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल खड़े किए थे। दिग्विजय सिंह ने यही जम्मू में जब एक सभा हो रही थी उस दौरान दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल किए। तो ये तमाम विवाद और लोकप्रियता इस यात्रा के साथ जुड़ी रही। इस पूरे यात्रा के दौरान राहुल गांधी पर भी कई तरह के उनके बयानों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए गए। चाहे हम बीजेपी से जुड़े हुए बयानों की बात करें, जम्मू जब राहुल गांधी पहुंचे तो वहां जिस तरह के राहुल गांधी के बयान थे, खासकर कश्मीरी पंडितों को लेकर कि कश्मीरी पंडितों को लेकर बीजेपी सिर्फ राजनीति करती है, उनके लिए कुछ करती नहीं है। कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधि मंडल से राहुल गांधी मिले। यात्रा में जो ब्रेक होता था उस दौरान भी
राहुल गांधी अलग अलग प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करते थे। तो एक हम कह सकते हैं इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भी कल कहा कि उनके जीवन का ये सबसे बड़ा अनुभव है और इस अनुभव में so उन्होंने Bharat कई Jodo चीजें Yatra सीखी है। receiving all kinds of brickbats, all kinds of bouquets and criticism, but it went on for 4 months, covered almost 4,000 kilometers through 12 states, 2 union territories, and a grand culmination that is planned today. Several key personalities, some controversial as well, who were part of this event. Thank you, Ranjita, for bringing those ground details.